कितनी तैयार है मंडियां। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। धान की सरकारी खरीद में देरी क्या हुई, अन्नदाता सड़कों पर उतर आए और फिर शुरू हुआ बवाल। किसानों के हल्ला बोल के आगे सरकार तो झुक गई और प्रदर्शन को देखते हुए फौरन फैसला बदला गया और रविवार से पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद के आदेश जारी कर दिए गए। हालांकि धान की खरीद तो शुरू हो गई, लेकिन परेशानियां कब होती हुई नजर नहीं आ रही। किसान फसल को लेकर मंडी तो पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां भी उन्हें परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर धान खरीद के लिए कितनी तैयार है मंडियां। धान की खरीद की शुरुआत के साथ ही किसान खुश हैं, तो कहीं पर माथे पर शिकन भी नजर आ रही है। पंजाब के किसान खुश हैं कि धान की खरीद शुरू हो गई, लेकिन परेशानियां अब भी पीछा छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि पंजाब में किसान धान खरीद से गदगद हैं। जिस मसले के लिए किसानों ने मोर्चा खोला, खेतों की लड़ाई सड़क तक जा पहुंची थी, आखिरकार उसका हल निकला। पंजाब में रविवार से धान की खरीद शुरू हो गई। रोपड़ में मोरिंडा अनाज मंडी में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद पहुंचकर इसका जायजा लिया और धान खरीद की शुरुआत करवाई। एक दिन भी किसान मंडी 'ਚ नहीं रुलेगा। ਆਉਂਦੇ ਦੀ ਉਹ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ सही ਹੋਵੇ। एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना में भी धान खरीद की शुरुआत हो गई है और मंडी प्रबंधन की ओर से फसल खरीद के पूरे इंतजाम किए गए हैं। ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਸਲ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 1 ਲੱਖ ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। मोगा में विधायक हरजोत कमल ने धान की सरकारी खरीद की शुरुआत की। देख सकते हो मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ 1 ਤੋਂ 3 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 10 दिन लेट नहीं हुई। धान खरीद शुरू होने से किसानों के चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही है। 1800 रुपये ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਰਦਾ ਜੱਟ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੜਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬੇਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਗੋ ਬਾਗ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਹ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਰੋਲਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। वहीं श्री मुक्तसर साहिब में पूर्व विधायक करण कौर बराड़ ने धान खरीद का शुभारंभ किया। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਬਰੀਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ।
खरड़ से भी धान खरीद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, तो वो दिल को सुकून देने वाली है। ਖਰੜ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੁੱਪੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਫਾਈ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜੰਡ ਬੱਤੇ ਆਏ ਜੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਬੋਲੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੌਇਸਚਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਕੁਝ ਨਾ, ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਆਇਆ ਜੀ। काबिले गौर है कि पहले सरकार ने 11 अक्टूबर से धान खरीद का फैसला लिया था, लेकिन किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए अपना फैसला वापस ले लिया और अब मंडियों में धान की खरीद शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। रविवार से धान की खरीद तो शुरू हो गई, लेकिन किसानों की परेशानियां कम होती हुई नजर नहीं आ रही। मंडियों में किसान धान लेकर पहुंच रहे हैं, बावजूद उसके उन्हें अपनी फसल की बिक्री का इंतजार है। मंडी में पहुंचकर भी अन्नदाता को मायूसी ही हाथ लग रही है। हरियाणा में भी धान की खरीद शुरू हो गई है। लेकिन किसानों की परेशानी अब भी बरकरार है। मंडियों में धान का अंबार लगा है, दोपहर का सूरज चढ़ चुका है, लेकिन किसानों के माथे पर शिकन की लकीरें खिंची। मंडी के गेट के बाहर धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतारें लगी हैं, क्योंकि गेट पर ताला लटका है। मंडी में धान खरीद की ये तस्वीरें करनाल की हैं, जो किसानों की हालत बयां कर रही है। किसान बड़ी उम्मीद के साथ मंडी में अपनी मेहनत की कमाई लेकर पहुंचा, मगर यहां भी उन्हें निराशा ही नसीब हो रही है। आखिर क्यों? सरकार ने भले ही कह दिया हो कि 3 अक्टूबर से धान की खरीद हरियाणा में शुरू हो जाएगी, लेकिन किसानों के लिए परेशानी बरकरार है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से असंध की तरफ जाने वाले रास्ते की, और जुंडला अनाज मंडी के पास जाम लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रोलियां जो किसानों ने बीच में ही खड़ी कर दी हैं, क्योंकि अंदर जाने का उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, और चारों तरफ जो जाम की स्थिति है वो यहाँ पर बरकरार है। किसानों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये है कि उन्हें गेट पास नहीं मिल रहा है। अब गेट पास धान खरीद की राह में रोड़ा बन रहा है। ना तो किसानों को गेट पास मिल रहा है, ना ही फोन पर कोई मैसेज आ रहा है। जुंडला अनाज मंडी में किसानों ने बीच सड़क पर ही ट्रैक्टर खड़े कर दिए, जिसकी वजह से लंबी कतारें लग गई। किसान धान की बिक्री नहीं कर पा रहे हैं, अन्नदाता को सिर्फ मायूसी ही हाथ लग रही है। जीरी यहाँ रोड पर खड़ी हुई है हमारी, और ऊपर से बादल हो रहा है, बारिश में भीगने का विचार है। जीरी हमारी भीगने का, और ये 4 दिन से मंडी में जीरी पड़ी है, वो नहीं बिक रही है हमारी जीरी। और सरकार करी है कि कल ना जीरी बिक जाएगी, और बिकने एक दाना भी गन्यू सारी जीरी नहीं पड़ी। सारी समस्या जरूरत तो गेट पास 2 गेट है मंडी के। एक गेट पे बैठे कंप्यूटर है, लाइन 3 लग रही देख लो, और तीसरा वो जो दूसरे गेट पे है वो उस पर कोई आई नहीं, ताला बज रहा है। प्रदेश के कई जिलों में धान खरीद का यही आलम है। पानीपत की अनाज मंडियां भी फसल से भरी पड़ी है, मगर धान की खरीद होगी इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं पानीपत की अनाज मंडी में, जहां पर सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूँगा कि आप मंडी में चारों तरफ जहां भी देखोगे वहीं पर फसल ही फसल है। कहीं ना कहीं किसानों को अनाज मंडी में फसल चोरी होने का खतरा सता रहा है और दूसरी तरफ किसानों को कहीं ना कहीं खुले आसमान के नीचे फसल उनकी पड़ी है, कहीं ना कहीं बारिश का खतरा विस्तार रहा है। अनाज मंडी में जो भी किसान यहाँ पर आ रहे हैं उनकी समस्याएं हैं, उनकी यही मांग है कि धान की खरीद शुरू की जाए, लेकिन पानीपत की अनाज मंडी में अभी तक धान की खरीद शुरू नहीं हुई। मंडियों में फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी है। किसानों को डर है कि कहीं उनकी मेहनत पर पानी न फिर जाए। मंडी में जिस तरह से फसल का अंबार लगा है तो चोरी होने का खौफ भी किसानों को सता रहा है। जी एक दाना तक नहीं बिक लिया आज तक। सारा फसल में पड़ी है। 10 किलो की जीरी ले गया हूँ मैं, एक हफ्ता हो लिया। मैं दुखी हो रहा हूँ, यहाँ पर कहाँ से खाना खाऊं। मेरे को आड़ते अब तक खाने का भी खर्चा नहीं दे रहा है। कहाँ से मैं खाना खाऊं, घर मेरा दूर गांव बुलाना है और मैं बहुत परेशान हूँ। सारी रात यहाँ पशु खाते हैं जीरी और चोरी भी होती है, अनाज उठता मेरा यहाँ पर रात को। मैं बहुत परेशान हूँ। किसान ही नहीं, आड़ती भी परेशान क्योंकि मंडियों में कोई तैयारी नहीं है और जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो वो भी गेंद एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं। अरे सरकार ने 25 तारीख का भी डिप्टी सीएम ने 25 तारीख का कहा था, अभी 25 तारीख को खरीद करेंगे। उस चक्कर में किसान बोला, किसान यहाँ ट्राली भर के लिया और कर भी कहाँ रखता उसको। उसके पास जगह थोड़ा इतनी ना सुखाने की जगह है ना इतने पड़ रहे हैं। उसके पास 10 किले की जीरी खरीद लगी है कि किसान खड़ा देकर रहता भाई 10 किले की जीरी लेके आ, कहाँ रखेगा उसको। किसान के पास तो इतनी जगह ही नहीं रखने के लिए, तो मंडी में लेके आएगा। अब ये यहाँ पर पड़े हैं, एक आदमी का डेली का कम से कम 500 रुपये 600 रुपये तो रोटी खर्चा होगा। खेत का काम बंद हो गया, अगली फसल की बिजाई करनी, क्या करे किसान, क्या करे बताओ मेरे को। धान की सरकारी खरीद के लिए रविवार का दिन चुना गया। किसान खुश थे कि आखिर अब 11 तारीख के बजाय एक हफ्ता पहले ही फसल की बिक्री होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई जगह मंडियों में फसल तो पहुंची मगर खरीद नहीं हुई। ऐसे में उम्मीद है कि 1-2 दिन में धान खरीद की व्यवस्था सुचारू रूप से होगी। कनाल से हिमांशु नारंग के साथ पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18। मंडियों में धान की आवक तेज हो गई है, लेकिन जिस तेजी के साथ मंडियों में फसल पहुंच रही है उसे खरीदने में उतनी रफ्तार नजर नहीं आ रही। फसल लेकर किसान मंडियों में पहुंच तो रहे हैं मगर व्यवस्थाओं का आलम चरमराया हुआ है, जिसके बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक बार फिर से सरकार को चेतावनी दी है। सरकार को चेतावनी है, हमारे से एक बार रोड आप और ना जाम करवाना। अच्छा उसके पहले समझ जाओ, आज ही ये दोनों ऑर्डर सरकार वापस ले ले और किसानों की जितनी पैदा हुई है वो सारी आराम से तोल दे, वरना एक लफड़ा और हो जाएगा। सरकार को एक बार फिर चेतावनी, फिर प्रदर्शन का अल्टीमेटम। मंडियों में भले ही धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई हो, लेकिन समस्या जस की तस है। किसान अपनी फसल लेकर मंडी तो पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां भी उन्हें समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है और अब मुश्किल खड़ी की है धान खरीद के लिए सरकार की शर्तों ने, जिस पर किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी फिर बेफर पड़े और सरकार को चेतावनी दी। साथियों, पता नहीं ये सरकार क्या सोचती है, किस तरीके से सोचती है। इन्होंने किसानों को परेशान करने का ठेका ले लिया है। अब की बार एक तो 25 क्विंटल की कैप लगा दी है कि 1 एकड़ से 25 क्विंटल धान बिकेगी, जबकि हरियाणा में पिछले साल 33 क्विंटल का जो था वो ऑर्डर था, 33 क्विंटल पिछले साल पर एकड़ खरीद की थी। फसल खरीद में सबसे बड़ा रोड़ा गेट पास बन रहा है। रविवार होने के बावजूद पोर्टल खोला गया, पंजीकरण की प्रक्रिया भी चलती रही। बावजूद इसके गेट पास के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी रही।
जो दिक्कत आ रही है उसको लेकर? वो शेड्यूल के अनुसार गेट पास जारी किए जाएंगे, जो हमें हेड ऑफिस से डायरेक्शन है। एक जो 25 क्विंटल की भी बात कही गई है कि एक एकड़ से 25 क्विंटल, वो भी जो लिमिट फिक्स है सरकार की तरफ से। मंडियों में अव्यवस्था का आलम है, वहीं खरीद को लेकर सरकार की शर्त से भी किसानों में रोष है। किसानों के मुताबिक धान की नमी 22.7 से घटाकर 17 कर दी गई है। साथ ही प्रति एकड़ 33 क्विंटल से घटाकर 25 क्विंटल खरीद की शर्तें लगाई है। किसानों के मुताबिक सरकार शर्तें तोड़कर धान खरीद से भाग रही है। पिछले साल 33 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा था, अब की बार जो 25 क्विंटल की कैप लगा दी है वो बिल्कुल गलत बात है। और ये पोर्टल वोर्टल ये किसानों को बर्बाद करने, समय बर्बाद करने वाली बात है। किसान साधारण है, भोला है, पोर्टल के चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। तो पोर्टल वोर्टल की समस्याएं दूर करके किसान की जब भी फसल आ जाए मंडी में उसी दिन ले लेनी चाहिए। जो 1 और 2 के उनका हम गेट पास करते हैं, 1 और 2 में जिसने शेड्यूल चूज किया उसका हम गेट पास करते हैं, ना उसकी बिक्री होती है। बाकी जो जिसका शेड्यूल कल आएगा उसका गेट पास कल करते हैं। अन्नदाता परेशान है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कुछ की फसल मंडी में पड़ी है तो कुछ की मंडियों के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली में। ऐसे में किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने सरकार को फिर चेताया है कि सरकार धान खरीद की शर्तों को हटा दे, वरना वो फिर सड़क जाम करने को मजबूर हो। काबिले गौर है कि शनिवार को भी किसानों ने प्रदर्शन कर विधायकों सांसदों का घेराव किया था, जिसके बाद आनन फानन में सरकार ने धान खरीद के फैसले को वापस लिया था। सोनीपत से नितिन अंतिल और कुरुक्षेत्र से अशोक यादव के साथ गोहाना से सुनील जिंदल, न्यूज़ 18 हरियाणा। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।